बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल के लेक्चर में हमने आपको ओलिगोपोली के बारे में बताया था, ड्यूओपोली के बारे में बताया था, और इसके अलावा हमने आपको बड़ी तफसीलन प्रिजनर डिलेमा समझाया था, और उसके साथ साथ हमने आपको नैश इक्विलिब्रियम अटेन करना सिखाया था। आज हम उस नैश इक्विलिब्रियम जो अपने प्रिजनर्स डिलेमा के ज़रिए से सीखा था, आज हम ड्यूओपोली के ऊपर अप्लाई करेंगे और हम देखेंगे। हमारा टॉपिक एग्जैक्टली वही है, हम ड्यूओपोली और ओलिगोपोली पढ़ रहे हैं, और आज हम ओलिगोपोली गेम्स को पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ हियर ओलिगोपोली इज प्राइस फिक्सिंग गेम, एंड ओलिगोपोली प्राइस फिक्सिंग गेम के ऊपर हम बात करेंगे। Now, a game like the Prisoner's Dilemma is played in duopoly. It's just like Prisoner's Dilemma, right? आपको अच्छी तरह से याद होगा। तो ये गेम बिल्कुल Prisoner's Dilemma की गेम की तरह से खेली जाती है, ठीक है। A duopoly is a market in which there are only two producers that compete. A duopoly is a market in which there are only two producers that compete, okay? तो ये ड्यूओपोली के अंदर जो है ये गेम खेली जाती है। Now, duopoly capture the essence of oligopoly, right? Duopoly captures the essence of oligopoly. That is why we are studying duopoly as well. Next figure, means 13.8 on the next slide, describes the demand and the cost situation in natural duopoly, right? So here we go. So you need to look at this diagram. You'll see that part A shows each firm's cost curve, right? And part B shows industry, okay? And part B shows the market demand curve. So this is the market demand curve. This one, blue one, is the market demand curve, and this is the individual firms average total cost and marginal cost, okay? So the part A shows firm's cost curves, each firm's cost curve, and part B shows market demand curve, okay? Now, here we go. This industry is a natural duopoly. The two firms can meet the market demand at the least cost. Two firms can meet the market demand at least cost, right? Where average cost is minimum. You can see here average cost is minimum, right? So firm can meet the market demand at least cost. Here MC marginal cost is intersecting MC at the minimum point, so that is the point where average total cost is minimum, okay? So that firm is basically is supplying quantity equal to 3 at the price 6, right? So the other firm will supply the rest. What is that? Total market demand is, you can see from this diagram, is 6, right? तो प्राइस 6 होगी, और वो जो फर्म है, एक फर्म 3,000 ऑफ स्विच गियर्स पर वीक जो है वो क्वांटिटी जो है वो सप्लाई करेगी, और दूसरी फर्म भी जो है वो 3,000 ऑफ द स्विच गियर्स पर वीक जो है वो सप्लाई करेगी। तो टोटल मार्केट डिमांड कितनी थी? 6। सो उसमें से 3 and 3 जो है वो क्या कर लिया जाए? शेयर कर लिया जाएगा, राइट? नाउ हाउ डज दिस मार्केट वर्क? ये मार्केट किस तरह से, व्हाट इज द प्राइस एंड क्वांटिटी प्रोड्यूसेस इन इक्विलिब्रियम, ये हम देखेंगे। Here we go. Suppose that the two firm enter into collusive agreement, right? उनका agreement हो जाता है। A collusive agreement is an agreement between two firms to restrict output, raise price and increase profit. Collusive agreement is an agreement between two, अगर वो duopoly है तो 2, और oligopoly है तो more than 2, right? Firms to restrict output, raise prices and increase profit. तो वो output prices उनको restrict कर देती हैं, okay? So, such agreements are illegal in United States and are undertaken in secret. So फिर ये वाज़ेह नहीं होते, secret होते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ये इलीगल है और इसको कार्टेल बोलते हैं, ओके?
So firms in exclusive agreement operates a cartel, right? So firms in exclusive agreement operates a cartel. वो cartel के तौर पे काम करते हैं, right? Now the possible strategies अब क्या हो सकती हैं? Comply, cheat, right? Comply यानी कि आपस में ईमानदारी से काम करें या cheat करें एक दूसरे को. Because each firm has two strategies that are there are 4 possible outcome. Strategies कितनी है? 2 और possible outcome कितनी हो जाएंगी? 4. Exactly आप ज़हन में लाएं prisoners dilemma. उसमें confess था और deny था. ठीक है जी. Possible strategies क्या थी? Confess और deny. चूंकि player 2 थे, आर्ट और बॉब, लिहाजा possible outcome कितनी हो गई? 4. मतलब कैसे? बॉब कन्फेस करे, आर्ट डिनाई कर दे, बॉब डिनाई करे, आर्ट कन्फेस कर ले, या दोनों डिनाई कर दें या दोनों कन्फेस कर लें, तो 4 हो गए ना आपके पास पॉसिबल आउटकम. तो इसमें स्ट्रेटजीज क्या है? कंप्लाई या चीट, राइट? और बिकॉज 2 फर्म्स आर देयर, सो हाउ मेनी आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स? दीज आर 4. मीन फर्स्ट वन, बोथ कंप्लाई, दोनों कंप्लाई करें. बोथ चीट, दोनों चीट करें. टिक कंप्लाइज एंड गियर चीट्स, ये 2 हमने अज्यूम किए हैं फॉर्म्स, राइट? गियर कंप्लाइज एंड टिक चीट्स. गियर क्या करे? कंप्लाई करे और टिक चीट करे. तो इसमें 4 पॉसिबिलिटीज आपके सामने आ गई. तो पॉसिबल स्ट्रेटजीज तो 2 है, कंप्लाई और चीट. अब चूंकि प्लेयर 2 है तो क्या हो सकता है कि दोनों कंप्लाई करें, एक आउटकम होगी, दोनों चीट करें, दूसरी आउटकम होगी. टिक कंप्लाई करे और गियर जो है वो चीट करे, या गियर कंप्लाई करे और टिक चीट करे. ये 4 पॉसिबल आउटकम्स आपके सामने आ गए. ओके, नाउ ओलिगोपोली गेम आप देखिएगा. द फर्स्ट पॉसिबल आउटकम, बोथ कंप्लाई earns the maximum economic profit, which is the same as the monopoly would earn, right? To find out that profit, we set marginal cost for the cartel equal to marginal revenue for the cartel, right? The cartel marginal cost curve is the horizontal sum of the marginal cost curve of the 2 firms, and the marginal revenue curve is like that of monopoly. Okay, so you can see that on the B part we are showing industry, and A part it is an individual, right? The firm maximize economic profit by producing the quantity where MC is equal to MR. Here you can see, here is the marginal revenue is equal to marginal cost, right? The quantity is 4 and the price is 9, right? So collusion achieves monopoly outcome. Okay, ये monopoly outcome है ना कि marginal revenue और marginal cost जहाँ पर intersect करें उससे quantity तय हो जाएगी, और अगर demand तक ले जाएं price हो जाएगी. ये आपके कौन सी outcome है? monopoly. अब इसमें क्या है कि दोनों का collusion या cartel या दोनों मिलकर अगर कोई फैसला करें तो वो monopoly वाली सूरत हाल बन जाएगी. ओके, now each firm agree to produce 200 units and each firm shares the maximum economic profit. You can see that if the price is 9, right? You can see in B part of the diagram we have already achieved the price 9 and quantity 4. It means इक्विलिब्रियम यहाँ पे हुआ था, माइनर रेवेन्यू और माइनर कॉस्ट ने इंटरसेक्ट किया था, क्वांटिटी हमें मिल गई और हमें आपकी प्राइस मिल गई. तो प्राइस और क्वांटिटी डिटरमिन हुई, और आपने गौर किया कि इट इज डिटरमिन्ड सेम इन द वे वी डिटरमिन्ड इन मोनोपोली. ओके, क्योंकि दोनों का क्या बना हुआ है? कार्टेल है, या दोनों कोलिजन, दोनों इकट्ठे मिलके फैसला कर रहे हैं. ओके, तो इससे हुआ क्या? इस प्राइस के ऊपर आप देखें कि इंडिविजुअल फर्म जो है उसको उसकी जो एवरेज कॉस्ट है वो आपकी, आप देखें प्राइस है 9, राइट, एंड एवरेज कॉस्ट इज 8. सो प्राइस 9 है और एवरेज कॉस्ट क्या है? 8. तो आपने देखा कि ये द ब्लू पार्ट इज द
इज द इकोनॉमिक प्रॉफिट। हम देखें कि बड़ी सादा सी बात आपको नजर आएगी, प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज टोटल कॉस्ट। तो प्राइस अगर एवरेज टोटल कॉस्ट से ज्यादा हो तो हम क्या कहते हैं, ये क्या है, इकोनॉमिक प्रॉफिट। सो ब्लू पार्ट इज शोइंग इकोनॉमिक प्रॉफिट। वेरी सिंपल है, मार्केट डिमांड कितनी है 4, प्राइस क्या हुई 9, उसमें से इंडिविजुअल फर्म ने 2 जो है वो, और दूसरी 2 फर्म्स है ना, तो एक भी 2 जो है आउटपुट देगी और दूसरी भी 2 सप्लाई देगी, तो 4 पूरे हो गए और प्राइस 9 पे। कॉस्ट चूंकि इस फर्म की 8 है तो उसको इकोनॉमिक प्रॉफिट अटेन हो रहा है। सो ईच फर्म एग्री टू प्रोड्यूस 200 यूनिट्स या 2000 यूनिट्स ईच एंड फर्म शेयर्स द मैक्सिमम इकोनॉमिक प्रॉफिट। इज इट क्लियर? तो इसे बड़े गौर से देखिए, यहां से हमने आगे जो है वो आपको ऐसी सिचुएशन बतानी है कि जिसमें एक जो है फर्म चीट करे या दूसरी कंप्लाई करे, फिर क्या होता है। सो इन दैट केस ऑन द राइट हैंड साइड डायग्राम ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ योर स्क्रीन इज शोइंग द इक्विलिब्रियम। दैट इक्विलिब्रियम इज एग्जैक्टली द सेम जो कि मोनोपोली के तहत होता है। उससे आउटपुट भी तय हो गई कि 4 है और उससे प्राइस भी तय होगी कि 9 होगी। अब 2 फर्म्स हैं। अब आप देखें, आप अपने स्क्रीन के जो लेफ्ट हैंड साइड पे डायग्राम उसमें देखें, उस फर्म का एवरेज टोटल कॉस्ट जो है और प्राइसेस डिटरमिन, प्राइस इज 9 एंड एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो 8 है। ठीक है, यहां से गुजर रही है। ओके, so इससे difference between 8 and 9 is the profit, that is the blue area. Okay, the blue part, ये आप ये वाला जो part है ना, this is the profit. Okay, so that is the economic profit. Now each firm produces 2000 units, the price is greater than the firm marginal cost, so if one firm increase output its profit would increase। बहुत सिंपल सी बात आपने देखा है कि मार्जिनल कॉस्ट से आपका प्राइस ज्यादा है। अब इस तरह से देखें कि एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। इस पॉइंट तक आप देखें, इस पॉइंट तक आप जरा गौर से देखें, एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। इट मीन कि एवरेज कॉस्ट में कौन सा ट्रेंड है, डिक्रीजिंग। देखिए, अगर एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा हो है तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, उससे भी पीछे जो है आपको मोनोपोली के तहत भी बताया कि जहां पे एवरेज कॉस्ट जो है मिनिमम होती है वो ऑप्टिमल यूज ऑफ प्लांट होता है, यानी कि अभी एवरेज कॉस्ट गिर रही है। तो इस सूरत में देखें कि एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी अभी एवरेज कॉस्ट गिर रही है, और जहां पे एवरेज और मार्जिनल इक्वल हो जाते हैं वहां पर एवरेज कॉस्ट जो है वो मिनिमम होती है, और जहां पे मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट होता है तो इसका मतलब है कि आपकी एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू हो गई है। तो इसका मतलब आपने अपने प्लांट के ऑप्टिमल यूज से ज्यादा, उससे मोर देन ऑप्टिमल। हाउएवर ये बातें मैं आपको सारी बता चुका हूँ, ये आपको याद दिलाने के लिए बता रहा था। तो यहाँ पे आप देखें कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो एवरेज कॉस्ट से कम है। इसका मतलब है कि फर्म अगर आउटपुट ज्यादा करेगी तो उसका प्रॉफिट ज्यादा होने के इम्कानात या चांसेस मौजूद है। रिमेंबर, क्यों? क्योंकि आउटपुट ज्यादा करेगी तो अभी उसकी कॉस्ट किस प्रोसेस में है, किस एरिया में, जब आपकी गिर रही है उस एरिया में जहां पे एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, हेंस एवरेज कॉस्ट है डिक्रीजिंग ट्रेंड येट, राइट। सो फिर क्या करेगी वो फर्म, वो ये करेगी अपनी आउटपुट बढ़ा सकती है। सो व्हेन ईच फर्म प्रोड्यूसेस 2000 यूनिट द प्राइस इज ग्रेटर देन द फर्म्स मार्जिनल कॉस्ट, सो इफ वन फर्म इंक्रीज आउटपुट इट प्रॉफिट वुड इंक्रीज, राइट। सो अब दूसरी फर्म जो है अगर कोई सी इन दो में से एक जो अपनी आउटपुट बढ़ाएगी तो उसकी इकोनॉमिक प्रॉफिट बढ़ने के इम्कानात है। इसका मतलब यह है कि उसको चीट करने के जो है वो इंसेंटिव मौजूद है कि अगर वो ज्यादा प्रोडक्शन दे तो उसके इकोनॉमिक प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है। ओके, हियर वी गो, यू कैन सी ए जो पार्ट है उसमें कंप्लायर जो ईमानदारी के साथ फर्म काम कर रही है उसका है, और बी पार्ट में आप देखें चीट, और डी पार्ट में आपकी इंडस्ट्री, राइट। सो हियर वी गो, वी कैन सी इफ द फर्म, अब देखिए आप इसमें 3 आपको डायग्राम्स नजर आ रही हैं। तो इसमें ए पार्ट के अंदर एक कंप्लायर जो कि ईमानदारी से काम कर रही है, और बी में जो फर्म चीट कर रही है, और सी में इंडस्ट्री आपको बताई गई है। ओके, लुक एट दिस फिगर 13.10 mean recent figure which is on your screen shows that what happened when one firm cheat and increase its output to 3000 unit. Industries
आउटपुट विल इंक्रीज टू 5000 एंड द प्राइस फॉल। ओके, इंडस्ट्री की जो है वो आपकी अगर एक फर्म ने चीट किया है और चीट की वजह से उसने प्रोडक्शन ज्यादा कर दिया, प्रोडक्शन ज्यादा क्यों किया? क्योंकि अभी आपकी जो है वो एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट है। अगर प्रोडक्शन ज्यादा करेगा तो कॉस्ट गिरेगी, तो उसको एबनॉर्मल प्रॉफिट या इकोनॉमिक प्रॉफिट उसका ज्यादा हो जाएगा, तो उसके पास चीट करने की जो है वो मौजूद है वजह। ओके, सो आपने देखा कि अगर वो चीट करती है तो जो कंप्लाई कर रहा है उसको 7.5 पर 2 सप्लाई है, और टोटल जो है वो जो दूसरी जो चीटर है उसने अपनी सप्लाई ज्यादा कर ली। आप देखेंगे जहां पे उसने सप्लाई ज्यादा किया वहां पर उसका एवरेज कॉस्ट, आप लुक एट दिस, here we go, this is average cost at minimum, right? If he produces 3 that cheat, the 7.5 is basically his price, and basically आपने देखा कि आपका जो एवरेज कॉस्ट है वो मिनिमम लेवल पे अगर वो प्रोडक्शन 3 दे, राइट? सो इसको आपने देखा प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, hence he can say that he is earning economic profit. However, the complier who is selling at 7.5, and this is the average cost as well, so he is working at, the complier firm is working at normal profit, but the cheat firm is working at abnormal profit. Okay, they are supplying 3 and they are supplying 2, so complier is still supplying 2, however its economic profit is abolished, and वो कितना हो गया? 0 हो गया, जबकि चीट जो है उसके इकोनॉमिक प्रॉफिट एक्सटेंड यानी कि ज्यादा हो गया। ओके, जब प्राइस 7.5 हुई, 7.5 क्यों हुई प्राइस 9 से? उसकी बेसिक रीजन क्या थी? वो ये थी कि चीटर ने प्रोडक्शन ज्यादा की। प्रोडक्शन ज्यादा क्यों की? क्योंकि उसको प्रोडक्शन ज्यादा करने से उसके प्रॉफिट्स बढ़ने के इम्कानात थे, क्योंकि अभी उसकी एवरेज कास्ट गिर रही थी। इट मीन उसने ज्यादा किए। अब मार्केट जो सप्लाई जो है, मार्केट डिमांड जो थर्ड पार्ट है, वो आपको ये बता रहा है कि अगर सप्लाई 8 होगी तो प्राइस जो है, अगर डिमांड 5 होगी, 7.5 प्राइस के ऊपर डिमांड 5 हो जाएगी 7.5 के ऊपर। सो इससे आपको ने देखा कि इसमें चीट को जो है वो प्रॉफिट हो रहा है। ओके, now for the compliers ATC is no exceed price, complier की ATC प्राइस जो exceed कर गई है, for the cheat price exceed the ATC. Look at the complier, right? ATC is greater than price, and here price is greater than average total cost. So this part is basically that yellow part for the cheat is economic profit, and the yellow part for complier is economic loss. Okay, the complier incurs an economic loss, right? Complier को क्या होता है? Economic loss हो रहा होता है, and the cheat earn an increased economic profit. You can see that that pink part is basically economic loss of the complier in part A of the diagram. Look at the part A of the diagram here, complier. So ये एरिया जो पिंक एरिया है ये बेसिकली इकोनॉमिक लॉस है, किसका? कंप्लायर का। और ये ब्लू एरिया जो है आपकी डायग्राम 2 के अंदर जो चीट के लिए बनाई गई है उसमें उसको क्या हो रहा है? ब्लू एरिया, दैट इज इकोनॉमिक प्रॉफिट। ओके, सो हियर फ्रॉम 0 to 1 इज कंप्लायर्स आउटपुट, एंड फ्रॉम 2 to 5 इज चीट्स आउटपुट। तो आउटपुट चीट की 3 है और कंप्लायर की 2 है। कंप्लायर इज प्रोड्यूसिंग 2 एंड चीट इज प्रोड्यूसिंग 3, सो ओवरऑल मार्केट सप्लाई इज और डिमांड इज 5। ओके, यू कैन इजीली सी चीट्स आउटपुट इज 3 एंड कंप्लायर्स आउटपुट इज 2। सो आपने देखा कि कंप्लायर इनकर्स इकोनॉमिक लॉस एंड चीट earns an increased economic profit. Okay, so either firm could cheat, so the figure shows 2 of the possible outcome. अब उसमें दोनों फर्म्स so either firm could cheat, so the figure shows 2 of the possible outcome, right? So you can see the first outcome, that economic loss is faced by complier and economic profit is faced, cheat face economic profit. So the output is divided between cheat and complier. The 2 is 2 यूनिट जो है वो कंप्लायर और 3 यूनिट जो है वो चीट जो प्रोड्यूस कर रहा है। ओके,
नेक्स्ट लेट्स सी द इफेक्ट ऑन बोथ फर्म चीटिंग। अब अगर दोनों चीट करती हैं फिर क्या होगा, ठीक है। इसमें तो एक फर्म ने चीट किया, लुक एट दिस, हियर वी गो। So this shows the outcome of both firm cheat and increase their output by 3000 units। अगर दोनों चीट कर लेती हैं और दोनों 3000 तक पहुंच जाती हैं फिर क्या होगा। Industry output is 6000 unit, the price falls and both firms earn zero economic profit, the same as a perfect competition। You can see very closely the कि जी आपका दोनों फर्म्स जो है प्राइस जो है डिमांड और मार्जिनल कॉस्ट आपको याद है सप्लाई का काम यहाँ पे क्यों कर रही है, क्योंकि मैंने आपको भी ये बताया था कि मिनिमम पॉइंट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट से ऊपर की तरफ मार्जिनल कॉस्ट ही बेसिकली सप्लाई कर्व होती है, राइट। सो दिस MC1 इज द सम ऑफ MC बोथ फर्म्स, फर्म 1 प्लस फर्म 2। सो इस तरह से इक्विलिब्रियम हो गया, और इक्विलिब्रियम आपको बता रहा है कि आउटपुट इज 6 and price is again 6। It means that both firm can 6 आउटपुट है ना, दोनों फर्म्स जो है वो 6 हैं और 3 आपस में डिवाइड कर सकते हैं। दोनों ने चीट किया और दोनों बिल्कुल किससे पहले जिनके दोनों नॉर्मल प्रॉफिट ले रहे हैं। आप अगर इस पार्ट ऑफ द डायग्राम को गौर से देखें ना, दिस इज द इक्विलिब्रियम, दिस इज द प्राइस, इट मीन प्राइस इज इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट, दिस इज नॉर्मल प्रॉफिट, ओके। रिमेंबर जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, दिस इज द सेम सिचुएशन जो कि परफेक्ट कंपटीशन के तहत एक फर्म फेस करती है। जैसे इस डायग्राम को बड़े गौर से देखिए, लेफ्ट साइड में इंडस्ट्री बताई गई है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई ऑफ द इंडस्ट्री इंटरसेक्ट कर रही है। अब दोनों ने चीट किया, दोनों ने अपने एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट पे आ गए। आप देख लें कि इस डायग्राम में दोनों अपने एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट पे, जहाँ पे MC जो है वो, इसके बाद आप देखें कि अगर आउटपुट मजीद बढ़ाएंगे तो एवरेज कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी। सो नोबडी विल इंक्रीज output beyond this point, okay। Why? Because every total cost start increasing, right? Or you can say MC is greater than ATC। When MC is greater than ATC, it means average cost जो है वो output के साथ बढ़ेगी। So दोनों ने चीट किया तो दोनों नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करें। In that case, the complier faces economic loss and the cheater faces चीट वाले को जो है वो इकोनॉमिक प्रॉफिट होना शुरू हो गया, ओके। सो आपने देखा। अब देखिए कि you have now seen the 4 possible outcome। If both complies, they make 2 million a week each। How much? 2 million a week each। If both cheat, they will earn zero economic profit। If both cheat, they will earn zero economic profit। If both comply, they will earn 2 million a week। If both cheat, it means they will earn zero economic profit। If tick complies and gear cheats, tick incur an economic loss of 1 million and gear makes an economic profit of 4.5। And if gear cheats and tick complies, what will happen? Then gear incur an economic loss of 1 million and tick makes an economic profit of 4.5। So please इस स्लाइड को बहुत अच्छी तरह से समझिएगा, बाकी पूरा लेक्चर इस स्लाइड के ऊपर बेस करेगा। आपने 4 पॉसिबल आउटकम्स देखी। एक क्या थी कि एक फर्म जो है वो चीट करती है और दूसरी कंप्लाई करती है। तो पहली सूरत में जब पहली फर्म कंप्लाई करती है और दूसरी चीट करती है तो उसमें जो कंप्लाई वाले को इकोनॉमिक लॉस हो रहा है और चीट वाले को इकोनॉमिक प्रॉफिट हो रहा है। अब इस बात को हम ये भी कह सकते हैं कि लेट्स से 2 फर्म्स है ना, टिक एंड गेयर। सो ट्रिक एंड गियर 2 फर्म्स हैं। हम अज्यूम कर लेते हैं कि ट्रिक जो है वो क्या कह रहे हैं, दोनों फर्म्स ट्रिक और गियर दोनों चीट कर लें तो प्रॉफिट इकोनॉमिक जो है वो 0 होगा। अगर बोथ फर्म कंप्लाइज, इनके गियर एंड ट्रिक जो है बोथ जो है कंप्लाई करें तो फिर क्या होगा, 2 मिलियन अ वीक होगा, राइट। और अगर ट्रिक कंप्लाई और गियर चीट तो इट मींस कि 1 मिलियन लॉस फेस करेगा जो कंप्लाई करेगा, और जो चीट करेगा 4 मिलियन उसको प्रॉफिट होगा। सो जो भी कंप्लाई करेगा उस 1 मिलियन लॉस, और जो कंप्लाई करेगा 4 मिलियन प्रॉफिट। तो ये आपकी दूसरी दोनों कंडीशन 3rd एंड 4th जो है ना ऑप्शन आपके सामने आ गई, राइट। सो दोनों ने कंप्लाई किया 2 मिलियन ईच, दोनों ने चीट किया 0 इकोनॉमिक प्रॉफिट। एक ने कंप्लाई और दूसरे ने चीट किया, जिसने कंप्लाई किया उसे 1 मिलियन का लॉस, जिसने चीट किया उसे 4.5 मिलियन का प्रॉफिट। और अगर एक ने जो है वो दूसरी ने चीट किया तो उसे
4.5 मिलियन का जो इकोनॉमिक प्रॉफिट, और जिसने चीट किया उसे जिसने कंप्लाई किया उसे 1 मिलियन का लॉस होगा. सो anybody who comply will face 1 million loss. Anybody who will cheat will face 4.5 million economic profit in case both are going in opposite direction. I mean, one is cheating and other is complying. But if both are cheating, it means they are basically earning 0 economic profit. If both are complying, they are earning what? $2 million a week. Okay, so these are the 4 possible outcomes. So just आप याद करें प्रिजनर्स डिलेमा. 4 ऑप्शंस थी, दोनों कन्फेस कर लें. बॉब था और दूसरा आर्ट था. अगर बॉब और आर्ट दोनों कन्फेस कर लें फिर क्या होगा? बॉब और आर्ट दोनों डिनाई कर दें फिर क्या होगा? बॉब और आर्ट एक कन्फेस करे, दूसरा डिनाई करे, और एक दूसरा डिनाई और पहला कन्फेस करे. एग्जैक्टली वो प्रिजनर्स डिलेमा जो है यहाँ पर अप्लाई होगा. दोनों चीट करें, दोनों कंप्लाई करें. ये उसी तरह से है जैसे बॉब और आर्ट दोनों कन्फेस करें या बॉब और आर्ट दोनों डिनाई करें. और बॉब डिनाई और दूसरा आर्ट कन्फेस करे, या बॉब कन्फेस और आर्ट डिनाई करे. ये 2 डिफरेंट ऑप्शंस थे, वो भी यहाँ पर आ गए. ठीक है. सो बोथ कंप्लाइज, बोथ चीट. If one complies and other cheat, if other complies and first one cheats, so these are the possible 4. So हमने उनके नाम यहाँ पे क्या ट्रिक एंड गियर रख लिए. ट्रिक एंड गियर. ट्रिक एंड गियर बोथ complies, ट्रिक एंड गियर बोथ cheat. ये 2 ऑप्शंस हो गए. ट्रिक complies एंड गियर cheat, ये एक ऑप्शन हो गया. गियर complies एंड ट्रिक cheat, ये तीसरा ऑप्शन हो गया. You can see here. First option, if both complies. Here. Second option, if both cheat. Third option, if tick complies and gear cheats. Third option, if gear complies and tick cheats. So ये 4 options हैं. Prisoner's dilemma ज़हन में रखिएगा और हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. ये देखो. The next slide shows the payoff matrix for the duplicate games. Try to understand this, try to recall the prisoner's dilemma. हमने पिछले लेक्चर में किया था. फिर देखिएगा कि किस तरह से हम duplicate games के अंदर फैसला करते हैं. Okay? Here we go. payoff matrix आपके सामने, और ब्लू में आप ट्रिक्स स्ट्रेटजी है और रेड में गियर स्ट्रेटजी है. आप इसको रीड करना तो आपको यकीनन आ गया. अगर दोनों चीट करें तो 0 इकोनॉमिक प्रॉफिट है. अगर ट्रिक चीट करे और गियर कंप्लाई करे तो जिसने कंप्लाई किया उसे 1 मिलियन का लॉस है और जिसने चीट किया उसे 4.5 मिलियन का प्रॉफिट है, इकोनॉमिक प्रॉफिट. सो यू कैन टिक अगर चीट करे राइट और गियर कंप्लाई करे तो आप देखें कि आपको टिक को 4.5 मिलियन का इकोनॉमिक प्रॉफिट और गियर को कंप्लाई करने पर बेसिकली 1 मिलियन का लॉस हो गया. अब ये तो टॉप वाले 2 हमने आपको स्क्वायर बताया. अब बॉटम वाले स्क्वायर जो लेफ्ट पर स्क्वायर है वो दरअसल वो किस तरह से आप पढ़ेंगे कि गियर आपका क्या करे, गियर आपका चीट करे राइट और टिक भी चीट करे राइट, तो दोनों को नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है. और गियर अगर चीट करे और टिक कंप्लाई करे तो टिक को लॉस हो रहा है 1 मिलियन का और गियर को 4.5 मिलियन का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, इकोनॉमिक प्रॉफिट. अब देखें कि अगर टिक की बात कर रहा हूं, अब गिवन क्या है, गियर जो है वो कंप्लाई करे, फिर क्या होगा, गियर कंप्लाई करे और टिक चीट करे, वो जो बॉटम में लेफ्ट हैंड साइड पे आपका मैट्रिक्स है उसके बिल्कुल उलट, यानी कि एक चीट और दूसरा कंप्लाई. तो टॉप वाला जो है आपका जो राइट साइड पे टॉप जो है वो स्क्वायर वो बता रहा है और दोनों अगर जो है एक दूसरा कंप्लाई और पहला चीट करे तो ये वाला. उसके बाद ये है कि अगर दोनों
चीट करें तो टॉप पर जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप का है वो बता रहा है, अगर दोनों कंप्लाई करें तो राइट हैंड साइड का जो बॉटम में है वो आपका स्क्वायर बता रहा है। दोनों कंप्लाई करें तो दोनों को 2-2 मिलियन मिल रहे हैं, दोनों चीट करें दोनों को नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है। अगर टिक कंप्लाई करे और गियर चीट करे, टिक कंप्लाई करे, सॉरी, अगर टिक जो है वो चीट करे और गियर कंप्लाई करे तो जो कंप्लाई कर रहा है उसको 1 मिलियन को लॉस है, जो चीट कर रहा है 4.5 मिलियन का। और अगर जो है वो टिक जो है वो कंप्लाई करे और गियर चीट करे तो फिर टिक को 1.0 मिलियन का लॉस हो रहा है और 4.5 मिलियन का प्रॉफिट इकोनॉमिक हो रहा है गियर को। सो दिस इज हाउ वी रीड द पे ऑफ मैट्रिक्स। ओके, नाउ सबसे पहले हम टिक्स व्यू देखेंगे, ट्रिक्स व्यूज देखेंगे, फिर हम गियर्स व्यूज देखेंगे। पहले हम किसको कर रहे हैं, ट्रिक्स व्यूज। सो ट्रिक का व्यू देखें ऑफ द वर्ड, हियर वी गो, दिस इज टिक। नाउ देखिए, अब रूल दोनों आपस में राब्ता नहीं कर रहे, दोनों का आपस में राब्ता नहीं है, दोनों आपसे राब्ता नहीं कर, तो अगर एक चीट करे, अब टिक क्या सोच रहे हैं, अपने तौर पे ये सोच रहे हैं अगर गियर मुझसे चीट करे तो उसे क्या करना चाहिए। गियर क्या करे, चीट करे, तो ट्रिक को क्या करना चाहिए। तो दिस इज ट्रिक्स व्यू ऑफ द वर्ल्ड। ही विल अज्यूम दैट गियर इज चीटिंग, राइट। सो व्हाट शुड टिक डू। अगर टिक जो है वो भी चीट करे तो नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा, और अगर टिक जो है कंप्लाई करे और गियर चीट कर रहा है तो उसको लॉस होगा, कितना, 1 मिलियन का। तो अब आप मुझे बताएं, गौर से सोच के बताएं कि अगर गियर चीट कर रहा है तो टिक को चीट करना चाहिए कि कंप्लाई। ये अपने आपके सामने मैट्रिक्स है, कौन सा ज्यादा सूटेबल होगा उसे। व्हाट शुड गियर ट्रिक डू। ये गिवन है कि गियर क्या कर रहा है, चीट कर रहा है, यानी कि ट्रिक जो सोच रहा है कि अगर गियर चीट करे तो मैं क्या करूं, मैं चीट करूं तो मुझे 0 नॉर्मल प्रॉफिट है, और मैं कंप्लाई करूं तो मुझे लॉस है। तो अब ट्रिक को क्या करना चाहिए, ऑब्वियसली उसे चीट करना चाहिए, क्योंकि कंप्लाई करने में उसे लॉस है, चीट करने में उसे 0 प्रॉफिट है, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट है, राइट। गिवन दैट गियर चीट्स, नाउ व्हाट अदर, इट मीन इन दिस केस when gear strategy is to cheat, then trick's best option is to cheat, because if it complies you will face 1 million loss. Okay, now the other option, that gear complies. No, if it is given that, अगर आप देखें ना, ट्रिक के माइंड में ये चल रहा है कि जी गियर कंप्लाई करे तो उसे क्या करना चाहिए। देखना है कि अगर गियर कंप्लाई कर रहा है तो ट्रिक को चीट करना चाहिए कि कंप्लाई करना चाहिए। अगर तो वो चीट करेगा when gear is complying, how much profit he will earn, 4.5 million, and if he complies he will earn 2 million. So in case gear strategy is that he is complying, right, so what should trick strategy, should he cheat or should he comply? If he comply he will earn 2 million, if he cheat he will earn 4.5 million. What is the rational decision? अगर वो ईमानदारी करे तो उसको 2 मिलियन मिल रहे हैं, राइट, और अगर वो चीट कर जाए तो उसको 4.5 मिलियन मिल रहे हैं, राइट। तो उसे क्या करना चाहिए, उसको किस में ज्यादा प्रॉफिट है, चीट करने में, राइट। सो ही विल चीट, ट्रिक स्ट्रेटजी क्या होगी, चीट करेगी। सो गिवन दैट गियर विल कंप्लाई, द रैशनल डिसीजन ऑफ ट्रिक्स, व्हाट शुड इट बी, चीट। व्हाट शुड इट बी, चीट। आपने गौर किया उसे क्या करना चाहिए, चीट, कंप्लाई उसे नहीं करना चाहिए। नाउ जब गियर चीट कर रहा था तो आपने देखा कि रैशनल डिसीजन क्या था कि ट्रिक को चीट करना चाहिए, और जब गियर कंप्लाई कर रहा है तो अब कंपेयर करके देख लें रैशनल डिसीजन क्या है कि गियर को क्या करना, गियर जब कंप्लाई कर रहा है तो ट्रिक को क्या करना चाहिए, उसे फिर रैशनल डिसीजन उसका यही होना चाहिए कि वो चीट करे, क्योंकि चीट करने में 4.5 मिलियन का इकोनॉमिक प्रॉफिट है और कंप्लाई करने में 2 मिलियन का। सो ही विल गो फॉर चीट। नाउ विल सी द गियर्स व्यू। अब हम बिल्कुल उसके उलट आ गए। तो अब देखें गियर का व्यू क्या है।
ये तो किसने सोचा था पहले? ट्रिक्स की स्ट्रेटजी। अब गियर की स्ट्रेटजी क्या है? ये बोलो, गियर अपने ताई ये बैठ के सोचता है कि ट्रिक जो है उसकी स्ट्रेटजी अगर चीट हो तो गियर को क्या करना चाहिए। तो अब सोच कौन रहा है? गियर की कंपनी सोच रही है। वो सोच रही है कि अगर ट्रिक चीट करे तो गियर चीट करे तो उसको नॉर्मल प्रॉफिट है, और कंप्लाई करे तो 1 मिलियन का लॉस है। आप सोच के बताएं कि व्हाट शुड गियर डू, व्हाट शुड बी इट्स स्ट्रेटजी? Should he cheat or should he comply? If he comply, he will face 1 million loss. If he cheat, normal profit. So what is rational decision? To cheat. Because cheat करने में उसे जो है वो क्या हो रहा है? Loss zero है। Mean उसका क्या है? उसका normal profit है। वो is earning normal profit. Now he will cheat. He will ignore compliance. Now gears other view. ये तो वो देखा था हमने कि ट्रिक जो है वो चीट करे। तो अब अगर फर्ज कर ले ट्रिक कंप्लाई कर रहा है तो गियर को चीट करना चाहिए कि कंप्लाई? तो अगर गियर ट्रिक जो है वो कंप्लाई कर रहा है तो गियर को क्या करना चाहिए? अगर वो चीट करेगा उसको 4.5 मिलियन का प्रॉफिट होगा, और अगर कंप्लाई करेगा तो उसे 2 मिलियन का होगा। अब सोचें, कंपेयर करें, चीट करने में 4.5 मिलियन और कंप्लाई करने पे 2 मिलियन। व्हाट शुड ही डू? उसे क्या करना चाहिए? Should he go for 4.5 or 2? Because 4.5 is greater than 2 million, it is obvious he will go for cheat. Okay, so look at this. He will cheat. Now, Nash equilibrium. We'll see what is the Nash equilibrium. What is equilibrium? He'll cheat, ignore the compliance, he'll cheat. This is the equilibrium. But we'll say Nash equilibrium. Okay. Now, Nash equilibrium is where both firm cheat. Nash equilibrium कहाँ पर था? जहाँ पे दोनों फर्म जो हैं वो चीट करें. The quantity and price are those of the competitive market and the firm earn normal profit. The quantity and price are those of a comparative market and the firms earn normal profit. देखिए Nash equilibrium में क्या है? Both firm cheat. जब दोनों फर्म चीट करेंगे तो फिर ये जो आपकी इक्विलिब्रियम है, इट वुड बी जस्ट लाइक द परफेक्ट कंपटीशन. व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन? रिमेंबर कि देयर इज नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट व्हाट डज इट मीन? P is equal to AR is equal to MR is equal to MC is equal to AC. नॉर्मल प्रॉफिट जो होगा, ठीक है. तो Nash equilibrium is where both firm cheat. The quantity and price are those of a competitive market and the firm earn normal profit. Okay, so Nash equilibrium कहाँ पर होगा? When both firm cheat. आपने देखा ना, दोनों फर्म जहाँ पर चीट करें वहां पर Nash equilibrium होगा. And the quantity and price are those of a competitive market and the firm earn normal profit. Right? Other oligopolies game क्या हो सकती हैं? Here we go. Advertising and R&D games are also prisoner's dilemma, right? And R&D game, assume Procter and Gamble and Kimberly-Clark plays an R&D game in the market for disposable diapers, right? So ये जो है Procter and Gamble और क्लार्क जो है, किम्बले क्लार्क्स जो है, ये R&D गेम जो है इन द मार्केट फॉर द डिस्पोजेबल डाइपर्स करते हैं. फिर होता क्या है? रिपीटेड ड्यूप्ले गेम. If a game is played repeatedly, it is possible for duplists to successfully collude and earn a monopoly profit. एक जो है ना गेम बार बार का की जाए तो उससे अल्टीमेटली क्या होता है कि वो collude यानी कि वो कार्टेल बना लेते हैं, राइट, और फिर वो मोनोपोली प्रॉफिट अर्न करते हैं, राइट. If the player take turn and move sequentially rather than simultaneously as the prisoner's dilemma, many outcomes are possible. Okay. If the repeated prisoner's dilemma duopoly game, additional punishment strategies enable the firm to comply and achieve a cooperative equilibrium in which the firm make a share the monopoly profit. So please इसको जरा अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें. देखें कि अगर if the players take turn and move sequentially rather than simultaneously as the prisoner's dilemma, many outcomes are possible. In a repeated prisoner's dilemma duopoly game,
additional punishment strategy enable the firm to comply and achieve a cooperative equilibrium. यानी कि अगर इसके अलावा कोई स्ट्रेटजी सामने लेके आ जाए इन पॉसिबल स्ट्रेटजीज के, तो उससे क्या होगा कि कोऑपरेटिव इक्विलिब्रियम, यानी कि वो इक्विलिब्रियम जिसपे जो है वो अच्छे दोनों जो है कंप्लाई करने की बहुत सारी ऐसी दीगर वजूहात भी मौजूद हो जिसपे वो एक दूसरे को कंप्लाई करने पे मजबूर हो, इन विच द फर्म मेक अ शेयर ऑफ द मोनोपोली प्रॉफिट, तो फिर वो मोनोपोली प्रॉफिट का कुछ शेयर अर्न कर सकती। अगरचे कि वो हमने नैश इक्विलिब्रियम के तहत या हमने जो ड्यूप्ली की गेम देखी थी उसमें हमने देखा था कि प्रॉफिट जो है वो नॉर्मल हो जाता है, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म की तरह से प्रॉफिट हो जाता है। ओके, one possible punishment strategy is a tit for tat strategy in which one player cooperates this period if the other player cooperate in the previous period। एक प्लेयर जो है वो इस पीरियड में इसलिए कोऑपरेट कर रहा है क्योंकि वो उसके कंपटीटर ने उसे पिछले पीरियड पे कोऑपरेट किया, ठीक है। लाइकवाइज चीट इन द करंट पीरियड इफ अदर प्लेयर चीटेड इन द प्रीवियस पीरियड, अगर अदर प्लेयर ने प्रीवियस पीरियड में चीट किया तो वो इस पीरियड में चीट करेगा, राइट। इट इज टिट फॉर टैट। मीन अब देखें, दो फर्म्स हैं वो काम कर रही हैं, उनके दरमियान मुआहदा होता है। अगर एक टाइम पीरियड में एक फर्म जो है वो चीट कर जाती है, ठीक है, और आफ्टर द एंड ऑफ द टाइम पीरियड दे रियलाइज ओके दैट फर्म चीटेड, सो व्हाट द अदर फर्म विल डू, अगला जो टाइम पीरियड है उसके अंदर वो इस फर्म को टिट फॉर टैट की बेस पर चीट करेगी। क्यों? क्योंकि उसने मुझे पिछले पीरियड में चीट किया था। और इन अदर वे अराउंड, इफ अ फर्म विल सी दैट अ फर्म विल द अदर फर्म कंपटीटर फर्म कंप्लाई थ्रू आउट द प्रीवियस पीरियड, दे विल कंप्लाई इन द नेक्स्ट पीरियड। इसको क्या बोलते हैं? टिट फॉर टैट, राइट, स्ट्रेटेजी। आपको इसको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी ना। जैसे कि आप देखेंगे, मैं जस्ट आपको एग्जांपल देने के लिए कि कोई एक समर का, जैसे एयर कंडीशन का अज्यूम कर लें, जस्ट अज्यूम एयर कंडीशंस हैं, वो समर के अंदर जो है वो दो कंपनीज हैं वो प्रोवाइड कर रही हैं और उनके दरमियान इसी तरह से जो है वो कंप्लाई करने का मुआहदा होता है, लेकिन वो एक चीट कर जाती है, चीट कर गई। अब उस बाय द एंड ऑफ दैट सीजन द वन फर्म रियलाइज दैट अदर फर्म हैज चीटेड मी, सो व्हाट दे विल डू इन द नेक्स्ट टाइम पीरियड, जिस फर्म ने कंप्लाई किया था वो इस बेस पर उससे चीट करेगी क्योंकि उसने प्रीवियस पीरियड में मुझे चीट किया था, राइट। अच्छा, जब जैसी सूरत हाल हो तो फर्म्स के या उनके ओनर्स के या कंपनीज के ज़हन में ये खौफ बैठेगा, इफ वी विल चीट दिस टाइम द अदर विल चीट नेक्स्ट टाइम, सो अल्टीमेटली उन्हें पता होगा कि हम एक दूसरे का नुकसान करेंगे, सो वो दे विल कंप्लाई इन द रिजल्ट, द अदर फर्म विल कंप्लाई। फॉर एग्जांपल इन दिस सीजन लेट्स से कि जो आपका एयर कंडीशन की जो है हवाले से बात हम कर रहे थे, एग्जांपल ली थी, एक फर्म रियलाइज करती है कि दूसरी कम्पिटिटिव फर्म ने इस सीजन में मुझे कंप्लाई किया, आई मीन दे नेवर चीटेड, डिडंट चीट, राइट। फिर क्या होगा? अगले सीजन में वो फर्म तय करती है कि चूंकि प्रीवियस पीरियड में इसने मुझे कंप्लाई किया था तो अब मैं इसके साथ कंप्लाई करूंगा। तो जब उस फर्म ने, बी फर्म ने उस सीजन में कंप्लाई किया तो ए फर्म जो है वो नेक्स्ट सीजन में बी फर्म के साथ कंप्लाई करेगी इस बेस पे कि उसने मेरे साथ कंप्लाई किया। फर्स्ट कहना ए और बी फर्म्स हैं, ए फर्म ने इस सीजन में कंप्लाई किया, बी फर्म ने इसलिए ए फर्म के साथ नेक्स्ट सीजन में कंप्लाई किया क्योंकि उसने प्रीवियस पीरियड में, करंट पीरियड में उसने कंप्लाई किया क्योंकि प्रीवियस पीरियड में उसने कंप्लाई किया था, ए ने कंप्लाई किया। अगला पीरियड आ गया, फिर ए विल कंप्लाई विद बी, व्हाई? बिकॉज इन द प्रीवियस, सो दिस वाज टिट फॉर टैट। एंड अदर वे अराउंड, अगर एक ने चीट किया तो दूसरी जो है उसके साथ नेक्स्ट सीजन में चीट करेगी, उस चीट की तीसरी जो दूसरी है वो पहले सीजन में, तो दिस इज हाउ इसे टिट फॉर टैट कहते हैं, राइट। सो एनीवे, वन पॉसिबल पनिशमेंट स्ट्रेटजी इज अ टिट फॉर टैट स्ट्रेटजी इन विच one player cooperate this period if the other player cooperated in the previous period, but cheat in the current period if the other player cheated in the previous period। तो सबका रवैया देखकर दूसरी फर्म फैसला करती है whether the firm should comply or cheat। Okay, a more severe punishment strategy is a trigger strategy in which a player cooperate if the other player cooperate but player that Nash equilibrium strategy forever thereafter if the other player cheat। So it's ultimate। Anyway, again इसमें आप देखें कि a more severe punishment क्या हो सकती है? The punishment strategy क्या हो सकती है? is a trigger strategy in which a player cooperates if the other player cooperates but players
but plays the Nash equilibrium strategy forever thereafter if the other player cheats। ये तो एक ऐसी बात है कि अगर देखें ना, पहले हम एग्जांपल क्या, पहली पनिशमेंट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है कि अगर आपने मेरे साथ इस एज अ प्रोड्यूसर इस करंट में प्रीवियस में अगर टाइम पीरियड में इफ आपने कंप्लाई किया तो मैं आपके साथ इसमें कंप्लाई करता हूँ करंट में, प्रीवियस में कंप्लाई हुआ तो करंट में कंप्लाई हुआ, प्रीवियस में चीट हुआ तो करंट में चीट हो जाएगा, राइट। सो इस तरह से टिट फॉर टैट स्ट्रेटजी थी। और दूसरी स्ट्रेटजी जो उससे कंपैरेटिवली सीवियर है उसको कहते हैं ट्रिगर स्ट्रेटजी, कि मतलब एक प्लेयर ने अगर एक सीजन में चीट किया है ना तो फिर क्या किया जाए, उसके साथ हमेशा नैश इक्विलिब्रियम वाली यानी स्ट्रेटजी अपनाई जाए फॉरएवर देयर आफ्टर इफ द अदर प्लेयर चीट। अगर किसी प्लेयर ने चीट किया तो उसके बाद से लेकर हमेशा के लिए उसके साथ कौन सी पॉलिसी होगी, नैश इक्विलिब्रियम वाली। अब देखें ना, नैश इक्विलिब्रियम वाली देखें, अगर दोनों कंप्लाई करते तो उन दोनों को 2 मिलियन का प्रॉफिट हो रहा होता है, जिस प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा दोनों को 2 मिलियन का हो रहा होता। अच्छा, अगर दोनों चीट करते तो उनको 0 जो है मिलियन का हो रहा है, इनके 0 नॉर्मल प्रॉफिट। तो क्या ये बेहतर नहीं था दोनों कंप्लाई करते और 2 मिलियन का जो है वो प्रॉफिट अर्न करते? लेकिन एक ने अपना प्रॉफिट 4.5 करने के लिए राइट जो है वो चीट किया, तो उस सीजन में तो उसने 4.5 अर्न कर लिया। सो नेक्स्ट जो सीजन है उसमें जो है दूसरा जो है वो इसके साथ चीट कर देगा, तो इस तरह से वो प्रॉफिट अर्न कर लेगा। सो इस तरह से टिट फॉर टैट स्ट्रेटजी। दूसरी स्ट्रेटजी क्या है कि वो ये कि अगर एनीवे मैं वो एक छोटी सी बात आपसे दोबारा, कि दोनों कंप्लाई करते तो 200 मिलियन जो 2 मिलियन ईच पर वीक प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, दोनों ने चीट किया तो 0 कर लिया। अब नैश इक्विलिब्रियम तो सजेस्ट कर रहा है 0 वाला, तो ये वाला इन मोर सीवियर पनिशमेंट इधर क्या है, नैश इक्विलिब्रियम पे उसे ले जाना, कीप हिम फॉरएवर on normal profit, right? But in जो tit for tat strategy उसमें ये है कि okay, we'll give you chance if you behave this season, we'll behave with you good behavior, you know, in next season as well. So ये आपकी repeated game and sequel games के हवाले से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि अगर उन प्रिजनर्स में तो ये प्रॉब्लम था प्रिजन डिलेमा में कि दे कैन नॉट मीट ईच अदर, दे कैन नॉट सी ईच अदर, राइट। दैट इज व्हाई दे विल हैव टू यू नो अल्टीमेटली दे विल द बेस्ट ऑप्शन इज नैश इक्विलिब्रियम। या इस सूरत में ये है कि yes they can see, they can comply, they can earn the profit, right, but 200 million, however they didn't, one of them is you know उसने चीट किया तो दूसरा जो है वो अल्टीमेटली उसे लॉस हुआ, जिसकी वजह से ये जो है नॉर्मल प्रॉफिट की तरफ यानी 0 प्रॉफिट की तरफ है। सो अगर वो कल्यूट करें या अगर वो कार्टेल बनाया हुआ है, इफ ऑल यू नो वो करें तो वो अल्टीमेटली दे विल अर्न द मोनोपोली प्रॉफिट, ओके। सो प्राइस वॉर might result from a tit for tat strategy where there is additional complication, uncertainty about change in demand. So price war might result from a tit for tat strategy. उससे price war शुरू हो सकती है where there is an additional complication, वो क्या, uncertainty about the change in the price. So आप देखें ना, prices अगर stable नहीं है so it is very difficult to you know predict or forecast the demand, okay. So a fall in demand might lower the price and bring forth a round of a fourth round bring forth a round of tit for tat punishment. So a fall in demand, so maybe agar a fall in demand might lower the price and bring forth a round of tit for tat punishment, right? Now a sequel entry game is a contestable market, right? So what is contestable? In a contestable market, a market in which firm can enter and leave so easily that firm in a market faces competition from the potential entrants firm play a sequel entry game. So it's very simple. Mean contestable market mean a kind of market जिसमें इतना आसान हो मार्केट के अंदर एंट्री और एग्जिट, इतना आसान एंट्री हो कि द फर्म हु इज इन द मार्केट, राइट, उसको जो बाहर बैठी हो वो उसकी कंपटीशन को फील करे। कंटेस्टेबल मार्केट क्या हुई? अ मार्केट इन विच फर्म कैन एंटर एंड लीव सो इजीली दैट फर्म इन द मार्केट फेस कंपटीशन फ्रॉम द पोटेंशियल एंट्रेंट, जिनके आने के इंडस्ट्री के अंदर आने के इम्कानात है वो उनसे भी खौफजदा हो। सो फर्म प्ले अ सीक्वल एंट्री गेम। तो वो किस तरह से देखें, here we go. First stage, look at this. This shows the game, a tree for a sequel entry game in a contestable market, right? Remember, this is the market where you know entry and exit is that easy that even you know the firms who are within
the market feels the competition from the potential entrants. Okay, so here we go. The first stage, Angela decides whether to set the monopoly price or the competitive price. Angela is a firm, the पहली स्टेज में वो ये डिसीजन करते हैं कि monopoly price या competitive price. उसके जवाब में ये जो पोटेंशियल वनेब्स हैं, ये सेकंड स्टेज के अंदर इसने डिसाइड क्या करना होता है. ठीक है जी, सेकंड स्टेज वनेब डिसाइड वेदर टू एंटर और स्टे आउट. अब वो बायर बैठी फर्म है, उसने देखना है कि एंटर, उसने एंजेला ने मोनोपोली प्राइस और कंपिटिटिव प्राइस दो एरोस देखे, अपने सेकंड स्टेज के वनेब ने डिसाइड करना. एंटर हुआ तो 90 पे ऑफ्स हैं और स्टे आउट रहा तो -50. Right, so look, this the red basically shows the Weneb, sorry, Angela, and blue part shows the Weneb. Okay, so you can see if Angela monopoly price रखती है, Weneb जो है वो उसने फैसला करना है एंटर करना है या स्टे आउट होना है. एंटर करेगा तो पे ऑफ 90 है उसका और एंजेला का -50 है, और स्टे आउट करेगा तो 0 है, एंजेला का 100 है. ओके, सो अब आप गौर से मुझे सोच के बताइएगा कि क्या उसे करना चाहिए. अब वो इज वेरी स्केयर्ड कि जी वो कोई नई फॉर्म जो अंदर वनेब आ ना जाए. अगर एंजेला जो है वो फर्स्ट स्टेज में मोनोपोली प्राइस रखती है तो सेकंड स्टेज में वनेब जो है उसके पास फैसला है एंटर हो या स्टे आउट. अगर वो एंटर का फैसला करता है तो उसे 90 पे ऑफ है और इसे -50 है. व्हाट शुड वी डू? एंटर certainly. Or if he stays out, he'll get 0. When 0 obviously stays out the market and 100% goes to Angela. Okay, this is very important point. But issue is that कि अगर वनेब एंटर होने का फैसला करता है उसे कर भी लेना चाहिए. व्हाट इज रैशनल बिहेवियर? एंटर होने पे 90 है और मीन स्टे आउट पे 0 है. व्हाट शुड दे डू? They will definitely prefer to enter. However, in the other case, competitive price जब एंजेला जो है वो डिसाइड करती है तो वनेब क्या करता है? Either can enter or stay out. If enters, right, Weneb, so they will get -10, or if stay out, so it's a -50. So what should Weneb do? Right, and if stay out, he'll get 0, right, payoff. And so Weneb will have to decide either go for 0 or -10. So what should he do? He will go for 0. So he will stay out. ऊपर आप देखें जब मोनोपोली प्राइस है तो एंटर में 90 और स्टे आउट में 0 है. तो व्हाट शुड Weneb do? They will enter. So आपने गौर किया कि मोनोपोली प्राइस के ऊपर जो बायर बैठी हुई फर्म है उसके एंटर होने के जो है वो इम्कानात जो है वो रैशनली जो है वो ज्यादा होते हैं. तो अब एंजेला क्या करेगी? कम्पिटिटिव प्राइस रखेगी ताकि वनेब जो है वो एंटर ना हो. ठीक है जी. सो अगेन स्टेज 1 एंजेला मोनोपोली प्राइस रखे या कम्पिटिटिव प्राइस रखे, ये उसने फैसला करना है. अगर वो मोनोपोली प्राइस रखती है तो ये जो वनेब है ये स्टेज 2 में इसने डिसाइड करना है कि क्या वो मार्केट के अंदर एंटर हो जाए या मार्केट से स्टे आउट रहे. एंटर होगा तो 90 है और स्टे आउट है तो 0 पे ऑफ है. वो क्या करेगा? ऑब्वियसली एंटर 90 पे ऑफ, राइट, कंपेयर टू स्टे अवे 0. नाउ हियर कम्पिटिटिव, अगर वो कम्पिटिटिव प्राइस रखेगा एंजेलियो तो वनेब क्या करेगा? उसने फैसला करना एंटर हो या स्टे आउट हो. अगर एंटर हो तो -10 पे ऑफ है और अगर स्टे आउट हो तो 0. तो क्या करेगा? 0 इज ग्रेटर देन -10. -10 लॉस है ना, तो वो क्या करेगा? 0 को प्रेफर करेगा. इट मीन कि एंजेलो ने अगर कम्पिटिटिव प्राइस रखी तो वनेब जो है वो स्टे आउट होने को प्रेफर करेगा, और अगर एंजेलो ने मोनोपोली प्राइस रखी तो वनेब जो है वो एंटर होने को प्रेफर करेगा. राइट, सो दिस बिकॉज ऑफ द पे ऑफ. सो ये आप रिपीटेड गेम एंड सीक्वल गेम्स को के तौर पे आप जो लें से और समझने की कोशिश करें. आई होप कि आपको समझ आ गई होगी. ओके, नाउ here we go. In the equilibrium of the entry game, Angela set a competitive price and earn a normal profit to keep Weneb out. Right? In the equilibrium of the entry game, Angela sets a competitive price and earns a normal profit to keep Weneb out. तो normal अगर competitive price रखे तो किस लिए उसने रखी? ताकि Weneb जो है वो मार्केट में एंटर ना हो सके. A less costly strategy is limiting pricing, which sets the price at the highest level that is consistent with keeping the potential entrant out. Right? So less costly strategy क्या है? Is limiting pricing.
So less costly strategy is limiting pricing, which sets the price at the highest level that is consistent with keeping the potential entrant out. So इसमें आप गौर से देखिएगा, लेस कॉस्टली स्ट्रेटजी है लिमिटेड प्राइसिंग, लिमिट प्राइसिंग की, which sets the price at the highest level that is consistent with keeping the potential entrant out. पोटेंशियल एंट्रेंट को बाय रखने के लिए जो 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 प्राइस हाईएस्ट लेवल प्राइस है ना, उधर रखी जाती है प्राइस, ताकि देखें अगर इससे प्राइस ज्यादा हुई तो पोटेंशियल एंट्रेंट्स आ जाएंगे, तो जिससे प्राइस ज्यादा हो, जिस प्राइस से ज्यादा प्राइस होने पर पोटेंशियल एंट्रेंट्स आ सकते हैं, उससे थोड़ी सी कम प्राइस रखी जाती है, उसे लिमिट प्राइसिंग जो है स्ट्रेटजी बोलते हैं. ओके, दिस वॉज टूडेज लेक्चर. सो आज के लेक्चर के अंदर हमने मोनोपोली गेम्स देखी, हमने देखा कि किस तरह से नैश इक्विलिब्रियम जो है, हमने प्रिजनर्स डिलेमा जो इस्तेमाल किया था प्रीवियस लेक्चर में, वो किस तरह से हम उसको जो है वो ड्यूपोली के ऊपर एप्लीकेबल बनाते हैं, और हम देखते हैं कि डिफरेंट ऑप्शंस लगा करके अगर एक फर्म ईमानदारी से काम करे और दूसरी उसे चीट करे, ठीक है, तो डिफरेंट ऑप्शंस क्या बनते हैं और नैश इक्विलिब्रियम क्या सजेस्ट करता है. और जो नैश इक्विलिब्रियम सजेस्ट करता है वो यही कहता है कि वो दोनों को चीट करना चाहिए. अल्टीमेटली जब दोनों चीट करेंगे, इट मीन फर्म विल वर्क लाइक परफेक्ट कम्पिटिटिव फर्म. और उसको अगर रोकने के लिए जो है वो टिट फॉर टैट स्ट्रेटजी भी है, ठीक है, और फिर वो जरा थोड़ी सी सख्त स्ट्रेटजी भी है कि हमेशा के लिए जो है ये तय कर दिया जाए कि वी विल फॉलो द नैश इक्विलिब्रियम हैंस. तो ये सारे हमने चीजें आज देखी. तो आज हमने आज के लेक्चर के इख्तिताम पर हम आपको ये बताते जाएं कि हमने बेसिकली फर्म्स जो है, फर्म की डिफरेंट टाइप्स को हमने कंप्लीट कर ली, जिसमें हमने सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन देखा, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, फ्री एंट्री, फ्री एग्जिट, प्राइस एंड आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, राइट. ये हमने पढ़ा था और हम आपको बताते चले और बताया भी था पिछले लेक्चर में शायद कि परफेक्ट कंपटीशन जो है रियल वर्ल्ड में उसकी पॉसिबिलिटी ना होने के बराबर. दूसरा जो है वो हमने आपको मोनोपोली पढ़ाया था. मोनोपोली मार्केट सिचुएशन होती है जिसमें सिर्फ एक फर्म के पास कंप्लीट कंट्रोल होता है, ना सिर्फ कंप्लीट कंट्रोल सप्लाई पर होता है बल्कि उस प्रोडक्ट का क्लोज सब्स्टिट्यूट भी मौजूद नहीं होता. सो ये वो गो फिश, इसमें भी थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ये भी रियल वर्ल्ड में इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है. फिर हमने मोनोपोली के तहत आपको सिंगल प्राइसिंग पॉलिसीज भी बताई थी और आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी बताया था, ठीक है जी. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए हमने बताया था कि एक फर्म जो है, मोनोपोलिस्ट जो है, वो एक ही चीज को दो मुख्तलिफ कीमतों पर बेचती है. दो मुख्तलिफ कीमतों पर बेचनी है, वो जो है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यूज के हिसाब से भी हो सकती है, वो जो है पर्सन से हिसाब की हो सकती है, और प्लेस के हिसाब से भी हो सकती है. जैसे हमने आपको डंपिंग बताया. डंपिंग बेसिकली इज वर्क इन द सेम वे. मोनोपोलिस्ट की मोनोपोली होती है विद इन द कंट्री, एंड आउटसाइड द country they will have to face the competition, hence they are selling the commodity at given prices, or the firm is price taker abroad. However, in country where that firm has monopoly, the firm will work determine the price according to marginal where marginal revenue is equal to marginal cost. Okay, so here the firm will earn abnormal profit or economic profit. However, outside the country they will earn normal profit, because perfect competitive firms always earn normal profit in long run. Okay, so इस तरह से हमने आपको मोनोपोली के हवाले से आपको कुछ बातें बताई थी. मोनोपोली के तहत हमने बताया था फर्म कैन वर्क एट तीन सूरत हालें हो सकती हैं, जिसमें ऑप्टिमल स्केल हो सकता है. ऑप्टिमल स्केल वो होता है, ऑप्टिमल यूज ऑफ द प्लांट हम इसे कहते हैं, वो होता है कि जहाँ पर एवरेज कॉस्ट मिनिमम हो. अगर वो मिनिमम से कम हो, यानी कि अभी एवरेज कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, तो लेस देन ऑप्टिमल यूज ऑफ प्लांट बोलते हैं. और अगर वो मिनिमम से आगे की तरफ चली गई है तो इसको मोर देन ऑप्टिमल यूज ऑफ प्लांट बोलते हैं. सो ये सारे आपके तीन ऑप्शंस थे जो कि पॉसिबली फर्म जो है वो ऑप्टिमल यूज भी कर सकती है, लेस देन ऑप्टिमल यूज भी हो सकती है, और मोर देन ऑप्टिमल. तो ये था हमारी मोनोपोली. उसके बाद हमने आपको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में बताया. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का जिसमें बहुत सारे मोनोपोलिस्ट एक दूसरे से कम्पीट कर रहे होते हैं, और दरअसल ये ही वो मार्केट सिचुएशन है वो जो कि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंटायर वर्ल्ड में मैक्सिमम यही प्रिवेल करती है, राइट. सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ही जो है तकरीबन सारी दुनिया में जो है वो most of the products go to the market, you will find most of the product working under monopolistic competition, right. So उसमें ये बहुत सारे मोनोपोलिस्ट जो है वो एक दूसरे से compete करते हैं, और हमने आपको बताया था कि हर मोनोपोलिस्ट को जो है अपने उसके साथ लॉयल जो है कंज्यूमर उसके साथ अटैच होते हैं, और उसमें वो प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करके थ्रू मार्केटिंग एंड थ्रू
एडवर्टीजमेंट वो अपनी सेल्स को बढ़ा रहे थे। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई थी कि जो प्राइस आपकी डिटरमिन होती है मार्केट में, उसका मेजर पार्ट जो होता है वो उसकी जो आपकी मार्केटिंग और जो आपकी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट उसके अंदर ऐड होती है। हाउएवर दिस एडवर्टीजमेंट कॉस्ट अल्टीमेटली हेल्प कि उससे आउटपुट इंक्रीज हो जाती है और कॉस्ट जो एवरेज टोटल कॉस्ट फर्म की कम हो जाती है, ठीक है, डिक्रीज हो जाती है, जिससे उसको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाता है। एनीवे, सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के तहत भी जो है वो फर्म्स ऑलमोस्ट नॉर्मल प्रॉफिट कमाती हैं। ओके, उसके बाद हमने आपको ड्यूपली और ओलिगोपोली बताई। दो फर्म्स अगर एक दूसरे के साथ compete कर रही हैं तो वो आपकी ड्यूपली होगी, और मोर देन टू, राइट, सो इसको ओलिगोपोली। हम बेसिकली ओलिगोपोली हमारा टॉपिक था, उसका एसेंस जो है वो ड्यूपली से निकला है, लिहाजा हमने दरमियान में ड्यूपली भी आपको बताया। उसको समझाने के लिए हमने आपको नैश इक्विलिब्रियम का जो हवाले से जो प्रिजनर्स डिलेमा है वो समझाया, और उसकी बेस पर हमने आपको फर्म का ड्यूपली का जो है वो चीट और कंप्लाई का डिलेमा जो है वो भी आपको समझाया। होप आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, और जितनी हमने फॉर्म की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं वो भी आपको समझ आ गई होंगी। इनको गौर से सीक्वेंस से पहले एक दूसरा तीसरा, ये जिस तरह से लेक्चर्स जो सीरीज है इनको इस तरह से जो है वो कंटिन्यूसली अगर आप सुनेंगे तो होपफुली आपको ये जल्दी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हमारी आपसे मुलाकात होगी, तब के लिए खुदा हाफिज।